हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। काफ़ी लोगों की ईमेल्स आई हैं। इन द मीन टाइम मैंने कोशिश तो की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा करूँ रमज़ान में, बट एक तो ये कि इतना बोला नहीं जाता। दूसरा ये कि मैं ज़रा फूड व्लॉग्स में ज़्यादा घुस गया हूँ, ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ। कलेजी वलेजी में लोगों का ज़्यादा ध्यान है, तो मैंने सोचा वो कर लेते हैं। और मेरे लिए भी वो एक न्यू फाउंड वो कहते हैं ना डिस्कवरी के आई डेंट नो आई कैन पुल दिस ऑफ, बट सो फार गोइंग ग्रेट। शुक्रिया बहुत बहुत आपकी सपोर्ट का, पेट्रियन पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। जो पेट्रन्स है मेरे पेट्रियन के, उनको मैंने आपको कहा था उनके लिए ईद कार्ड मैंने भेजने थे, जो कि रवाना हो चुके हैं और जब तक ये वीडियो आएगी मोस्ट लाइकली उन तक पहुंच चुके होंगे। ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा और मैं चाह रहा हूँ इसमें मज़ीद और भी चीज़ें ऐड करूँ। आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं अदर देन मर्चेंडाइज, टी शर्ट, मग वग। मुझे ये तो बहुत बेसिक चीज़ें लगती हैं। एनीवे, तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं डू दैट ऑन patreon.com/swag। चलते हैं आज की ईमेल्स की तरफ। 6:15 हो रहे हैं। इफ्तार से पहले जितने सवाल कर सकते हैं तेज़ी तेज़ी से कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, माय नेम इज़ वट एवर, आई एम फ्रॉम Lahore, brought up in UAE and lived there for almost 17 years. I came back to Pakistan in 2014, and from that day, instability of my life started. First, my brother and my mom came here in 2013. Then, my dad sent me here after matric for further studies, and I was not in the favor of this decision. But because of the financial issues back in UAE and relative bullshit advices, I came here. देखिए भाई, दूसरों की एडवाइस नहीं सुननी होती, अपनी गट फीलिंग। Somehow, my elder brother went back to the UAE because he couldn't adjust himself mentally here and completed his bachelor's degree from Ras Al Khaimah. On the other side, I was trying to complete my FSC pre medical, but I couldn't do it, and my 2 years were wasted. After all this, my father was unable to run two houses, यानी एक UAE वाला घर और एक यहाँ वाला घर. So we decided to go back to UAE, and I decided not to come back here again, and I will try my best to do something there because I knew that I will not be able to pass in Pakistan. But the problem is, I was still a metric student and I couldn't get something good. I was on visit visa for 2 years and meanwhile did some part time jobs as well. In 2018, I got admission in an Indian university in Ras Al Khaimah. I studied there for 1 year, and again, my father was unable to afford my studies and family life and decided to send us back to Pakistan again. In 2019, my brother got married, and in the same year, he was blessed with the baby boy. और टिपिकल पाकिस्तानी शादी वाले साली बच्चा फ़ौरन आ जाए। पहले देखें, क्योंकि अरेंज मैरिज है ना, तो पहले देखें क्या है हिसाब किताब चल रहा है। नहीं जी, फ़ौरन मकान किराए पे चढ़ाएं। एनीवे, in January 2020, I finally came back to Pakistan, living with my mom, sister-in-law, and my nephew, and decided to complete FSC or change my subjects and complete at least high school. But again, I couldn't do it because of age issues. Meanwhile, I was facing the worst period of my life, and that is saas bahu ki ladai. And this bullshit got to the next level, means galam galoj rozana. So many meetings held between the both families, but it happened again and again. I was the only one to handle an infant child and two women with the same attitude. Hope you know what I mean. Half of 2020 was wasted to decide what should I do, and in October I got admission in a college for diploma in computer IT. 2020, as you know, was the worst for the whole world and for me because I couldn't do anything beneficial for myself. No money, no skills, no education, and handling family issues. Now in 2021, I'm going to be 23 with nothing in hand. My brother also came back here to handle his family, but he also couldn't do much till now. Please tell me, what should I do now? Should I go back to UAE or do something here, or should I try to move abroad and for studies or work? I'm also sending my CV, so you can go through it, at least suggest what I can do. Sorry for the long email, but I'm up. Really like your sense of humor, and I believe you can suggest me something. So, जैसा कि आपने सुना, so एक साहब है, बैक एंड फोर्थ यूएई से आना जाना एडजस्ट नहीं हो पा रहे, पढ़ाई नहीं हो पा रही। पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही, पास क्यों नहीं हो पा रहे, बेटा ये आपने लिखा नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर आपका पढ़ाई में रुझान नहीं है या आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, कुछ लोगों का नहीं होता पढ़ाई का हिसाब किताब, बस वो इसलिए पढ़ रहे होते क्योंकि दुनिया ने पढ़ा है तो उन्होंने भी पढ़ना है। तो अगर आपका नहीं है रुझान और अगर आप अभी भी 23 के हो गए और अभी भी सोच रहे हो क्या करूँ, इधर रहूँगा, तो इससे बेहतर आप कोई काम शाम कर लो, कोई स्किल डेवलपमेंट की तरफ सोचें। 23 में जाके आप पढ़ाई अगर शुरू करेंगे भी, देखें पढ़ाई के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। लोग 40 साल की उम्र में भी मैट्रिक कर रहे होते हैं, 50 साल की उम्र में भी इंटर। एक करीम वाले अंकल मुझे मिले थे, बड़े खुश थे।
तो पता चला उस दिन उन्होंने मैट्रिक किया था, ही वॉज 49। उन्होंने मुझे अपना मार्कशीट दिखाई थी कि मैं सुबह बोर्ड ऑफिस से सीधा आ रहा हूँ। बहुत खुश थे, क्या इंस्पायरिंग स्टोरी थी। कह रहे मैंने सारे बहन भाइयों को पढ़ाया और उसी में मैं लग गया, सारी ज़िंदगी मेहनत की, अपनी पढ़ाई पीछे रह गई थी। सो या एक वो भी होता है जज्बा। मगर ये कि अब देखो यूएई आना जाना, अभी तो खैर आना जाना आसान भी नहीं है, प्लस जो है ना जो आपकी लिमिटेड वो है उसमें, अगर देखो पैसों का अगर इशू है जिसकी वजह से आपको यूएई से वापस यहाँ भेजा, तो आप अब्रॉड कहाँ जाओगे, टर्की कैसे अफोर्ड करोगे। यूरोप तो खैर वैसे ही अब बंद होने वाला है, यूरोपीय यूनियन तो अब ताले लगा रही है, अब रहेंगे हम इधर ही, ठीक है। तो वहाँ तो ज़्यादा खर्चा होता है, 25 30 40 लाख रुपए मसला ही नहीं है कोई। तो वो तो ऑप्शन नहीं है आपके लिए। तो मैं मेरी सजेशन आपके लिए यही होगी कि आप कोई स्किल वगैरह पे ना ध्यान दें। पहले तो अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट करें कि आप में क्या स्किल है, क्या आप राइटर फ्रीलांस राइटिंग कर सकते हैं, या आप वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या आप कोडिंग सीख सकते हैं। भरे पड़े हैं कोर्सेज। अब वो कन्वेंशनल डिग्रीज़ की ना कोई इतनी ख़ास ज़रूरत, मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री बेकार है, मैं ये कभी भी नहीं कहता। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो स्किल्स की तरफ जाएं। ऑनलाइन अवेलेबल बहुत डेटा पड़ा हुआ है। और वही वाली बात मैं हमेशा कहता हूँ भाई, जिसके पास, अब आपने इतनी अच्छी ईमेल लिखी है, आपकी अंग्रेज़ी में भी अच्छी कमांड है, तो अगर आप अंग्रेज़ी भी लिख सकते हो, इंटरनेट भी चलाना आता है, और आप महीने के 30 40 50 हज़ार अगर नहीं कमा रहे, तो इट्स इंटायरली योर फॉल्ट। अब वो वाली बात है कि जी मैं कोई गैस लाइटिंग नहीं कर रहा, मगर ये कि भाई बहुत बहुत तरीके कार हैं आमदनी के आजकल इंटरनेट की दुनिया में। ये वजह कि यार काम नहीं है, इसको तो मैं मानता ही नहीं हूँ। ढूंढने से मिलेगा, अब आप ढूंढें, घुसना पड़ेगा। मगर वो लौंडे जो है ना, आपको पता है वो घुसते फिर कहीं और है, उनका फोकस ही कहीं और होता है, फिर कहते हैं काम नहीं। काम बहुत है भाई, ऐसे ही है। हर वक्त हम तो बंदे ही ढूंढ रहे होते हैं, और मेरे कॉलीग जितने भी हैं हर वक्त ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है ना। सो आप ना अब ये करो, पढ़ाई वढ़ाई जो है ना कर लेना साथ साथ, मगर कोशिश करो अभी जो है ना, अब 23 के हो गए हो, अभी भी पढ़ने जाओगे 3 4 साल की डिग्री करोगे, 27 में निकलोगे, तो 27 में तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा। वो बोलेंगे भाई हमें 22 साल वाला बच्चा फ्रेश मिल रहा है, तो तुम 27 वाले अंकल का हमने क्या करना है, फिर क्या करोगे, फिर ईमेल लिख रहे होगे। तो बेहतर है 23 के हो गए हो, कुछ स्टार्ट कर लो, साथ साथ कोई प्राइवेट में कुछ कर लेना, बीए शीए बीकॉम शीकॉम, हालांकि उसकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है आज के दौर में। अगर तो सोल को खुश करने के लिए ग्रेजुएट होना है तो ही करें बीए बीकॉम के लिए कोई नौकरी नहीं। अबे एमबीए फारिग घूम रहे हैं, सही है ना। तो वो तो सीन ही ऑफ है। तो किसी स्किल पे आप ध्यान दें, और ये बैक एंड फोर्थ ख़त्म करें, अब मैं यहाँ रहा हूँ या वहाँ रहा हूँ, अब आप समझें आपने इधर ही रहना है, ठीक है ना। अफोर्ड करने वाला अगर होता तो आप के फादर आपको वहीं रखते हैं, यहाँ ना भेजते। तो मेरा आपको ये मशवरा है भाइयों वाला। Next one says flaws in our society. Salam Junaid bhai, hope you're doing well. I have a very few important things to say, just don't know how to reach out to our society. Maybe this email reaches you and we can together find a way to do what matters most in our times. I would like to talk about COVID first. I'm an MBBS doctor graduated from Nishtar Medical in 2020. One thing I can say with 100% confidence is that until government allows free and excessive use of heavy steroids like Solumedrol, we can never recover from COVID as a whole society. Whatever the guidelines are from WHO, they are actually harming the patients. I have treated so many patients with prescription that I have attached with this email. Please contact me. I want to explain. अच्छा यार, मैं ना कोई मेडिकल एडवाइस नहीं दे सकता, ठीक है ना, तो मैं वो तो नहीं पढ़ के सुना सकता, लेकिन मैं आपकी बाकी मेल पढ़ लेता हूँ. I want to explain it to you and to people why these medicines are better than any other medicines being given. Number 2, society. To sum this up, we are living in a Hindu society. और सबसे दुखी बात यह है कि हमारे लोग इसे इस्लाम का हिस्सा समझते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. द बर्निंग इशू. मर्द की शादी तब होगी जब वो अपने पाँव पे खड़ा होगा. दिस इज़ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ हिज बेसिक नेसेसिटी. मैं 25 साल की उम्र में डॉक्टर बन के इस सोसाइटी में हलाल नहीं कमा सका. वी आर डूइंग समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद द मेल्स इन देयर यंग एडल्टहुड. द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ we leave them to find love in toxic places, brothels, sex rackets, और even girlfriend culture जो love को manipulate करते हैं. love को एक ऐसा रंग दिया जाता है which has a terrible effect on their psyche. Right at this moment we are sowing the seed of toxic patriarchy in them. जब इनकी शादी 30-35 साल की उम्र में करेंगे तो definitely they will lash out that toxicity on females.
इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम फीमेल्स को बर्दाश्त करने का कहते हैं. मदर्स देमसेल्फ टेल डॉटर्स टू बी सबऑर्डिनेट्स एंड एट दिस मोमेंट वी आर सोइंग द सीड ऑफ टॉक्सिक फेमिनिटी इन द फीमेल्स, जो हमें लेटेस्ट स्टेजेस में मैरिजेस में नज़र आती हैं. व्हेन फीमेल्स हैव नथिंग बट टॉक्सिसिटी टू ट्रांसफ़र टू देयर डॉटर्स इन लॉ, सन्स एंड हस्बैंड. इन शॉर्ट, किसी को सकून नहीं करने दिया इस सोसाइटी में. इट्स अ टॉक्सिक साइकिल एंड इट कैन बी ब्रोकन इफ़ यू मेक अर्ली मैरिजेस कंपलसरी, एंड इट्स अ कम्प्लीटली वर्केबल मॉडल जो पेरेंट्स बच्चे का ख़र्चा उठा सकते हैं, वो एक और उसकी बीवी का भी उठा सकते हैं. अच्छा, और फिर उनकी बेटी भी तो किसी और के घर चली जाएगी. इट्स अ टोटली वर्केबल सोल्यूशन, बस सोच की तब्दील होने की ज़रूरत है. नंबर 3, इस्लाम. वेल आई हैव सो मच टू से ऑन दिस. ईमेल बहुत लंबी हो गई, प्लीज़ रीच आउट टू मी. ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने कोविड वाली बात की ना कि आपके पास कोई मेडिसिन का है, अगर वो इतना होता तो भाई वैक्सीन के लिए लोग मन नहीं रहे होते, तो फिर आपसे कर रहे होते. तो मैं कोई मेडिकल एडवाइस ना मैं दे सकता हूँ, और ना ही मैं कोई जो है ना इस चैनल के थ्रू किसी भी किस्म की लूज इंटरप्रिटेशन आगे. जो आपने दूसरी बात लिखी ना, वी आर लिविंग इन अ हिंदू सोसाइटी. यस, उसकी वजह ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदू सोसाइटी का होना कोई गलत बात नहीं है, वो भी एक सोसाइटी है जिस तरह आपकी एक सोसाइटी है. दूसरी चीज़ ये कि अगर ये देखें ना, ये हमारे यहाँ बड़ा गलत कहा जाता है कि जी हमारा हिंदुओं वाला कल्चर है. दैट्स बिकॉज दिस वॉज फॉर 5000 years it was a Hindu land which was invaded by Muslims, राइट. हिस्टोरिकली अग्री करते हो, यहाँ हिंदू रहते थे, आराम से रहते थे, जो भी कर रहे थे, उनकी ज़मीन थी, 5000 साल से रह रहे थे. मुस्लिम्स केम ओवर एंड नाउ दे सेइंग कि ये हिंदू सोसाइटी है. तो ठीक है, आप चले जाए सऊदी, आपको किसने मना किया है? अगर आपको लगता है हिंदू सोसाइटी है, दैट्स बिकॉज इंडस क्या है? हिंदू है. द वर्ड इंडस इज वर्ड सिंधु, हिंदू वहीं से निकला है, राइट. तो इंडस वैली जो है वो हिंदू वैली है, राइट. तो आपने बोल दिया कि जी किला है इस्लाम का, जो कि आपने अपनी बुक्स में पढ़ा है, मगर यहाँ तो हिंदू रह रहे थे, पीसफुली रह रहे थे, डिस्कवरीज कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे. आपने आके चढ़ाई कर दी, फिर कह रहे हैं जी हमें रहना नहीं इनके साथ. तो भाई नहीं रहना तो चले जाएं. ओमान, टर्की, 56 मुल्क है भाई, फिर भी आपने तोड़ा. और टूटा भी सिर्फ पंजाब ही टूटा, सिंध तो पूरे का पूरा वैसे ही था, बलूचिस्तान अलग था, फाटा अलग था, केपी के अलग था, ठीक है ना. तो मुझे ना ये वाली लॉजिक समझ नहीं आती. अब जैसे इंडिया में भी हैं, इंडिया में भी हर किस्म के मुस्लिम हैं, बहुत सारे कट्टर भी हैं, बहुत सारे जो है थोड़े सेंट्रिस्ट हैं, समझ रहे हैं आप, राइट विंगर्स भी हैं. अब वो कहते हैं, वो इंडिया में रह के कहते हैं जी ग़ज़वा हिंद करना है. तो मतलब ये तो आप ब्लेटेंट जो है ना वायोलेशन है. आप एक मुल्क में रहते हैं जो आप जिसका लॉ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आप उसी के ख़िलाफ़, तो ये तो बगावत हुई ना. और बगावत की सज़ा हर मुल्क में, और कहते हैं भाई लॉ ऑफ द लैंड आपने फॉलो करना है, सुन्नत भी यही कहती है, राइट. तो ना ये वाली बात मुझे समझ नहीं आती. हिंदू सोसाइटी है तो हिंदू सोसाइटी है, तो क्या वो एक मीम मैंने देखा था कि एक मुसलमान हिंदू को कह रहा होता है कि जी इस्लाम जो है ना हमें सिखाता है अमन के साथ रहना और इज़्ज़त करना और लोगों का एहतराम करना और झूठ नहीं बोलना और रिस्क के हलाल कमाना. तो हिंदू कहते तो हमारा मज़हब कौन सा कहता है कि बैंक लूटो, राइट. सबका मज़हब भी यही कहता है भाई कि आप कोड ऑफ कंडक्ट तो सबका एक ही है कि झूठ ना बोलो, नाप तोल में कमी ना करो, ना हक का खून ना बहाओ, यही है ना. कोड ऑफ कंडक्ट तो सबका यही है. तो ना ये कह देना कि जी ये हिंदू सोसाइटी है या हिंदू कल्चर है, दैट इज़ बिकॉज यहाँ 5000 साल से हिंदू ही रह रहे थे. और आप अपना DNA टेस्ट करा लें, आप भी 18वीं सदी से पहले आप भी कुछ और ही होगे. कुछ लोगों का होता है उनके पास पूरा बायोडेटा, आई डोंट नो हाउ देर मेंटेनिंग इट. कुछ लोगों के पास होता है, दे कैन ट्रेस देयर रूट्स, राइट. आप अपना DNA टेस्ट करा लें, आप भी पीछे से राजेश ही निकलेंगे मोस्ट लाइकली. ऐसा ही है भाई. हम चांद से हैं भाई. अब हमें ना देखो, ये सवाल तो छोड़ो, मैं इधर अब मैं ना दूसरे मूड में आ गया हूँ. हमें ना सबसे बड़ा मसला, हमें हम यहाँ के हैं मगर हम मानने को तैयार ही नहीं है कि हम यहाँ के हैं. दैट वी वर वन ऑफ दीज पीपल कि मेरी रूट्स सिख भी हो सकती हैं, मानने को ही नहीं तैयार. हिंदू भी हो सकती हैं. हम पीछे पड़ रहे हैं जी हम अरब हैं. 60 साल से अरब खिल रहे थे, अब तुर्की का टीका लग गया, अब हम तुर्की हैं. अबे
फ़्लाइट लेके जाओ तुर्की, ना तुम्हारी उनसे शक्लें मिलती हैं, ना तुम्हारी उनसे कुछ नहीं मिलता, कस्टम्स ही नहीं मिलते, कल्चर ही नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। नहीं जी हम अरब हैं। कौन से अरब हैं? अरब की शादी कभी देखी कैसे होती है? इजिप्ट में मैं गया था एक शादी में, है भाई ये ज़रा सुने, शादी में मैं गया, ठीक है, वहाँ पे शादी हॉल नहीं होते, रेस्टोरेंट होते हैं। तो यानी आपने जी दावत दी कि जी लाल किला में मेरी शादी है, बूफे डिनर है, आ जाए आप, या अला कार्ड वॉटेवर, आप आए, टेबल सबकी, नाम वाम लिखे हुए, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं होता भाई कि जितने कार्ड दिया दो दो बंदों का 6 आ गए उठ के, ऐसा कहीं नहीं होता। ये कार्ड के नीचे जो RSVP लिखा होता है ना, इस पर मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी। RSVP का मतलब होता है कि जब आपको कार्ड आएगा ना, तो फिर आपने कितने बंदे आने हैं वो लिख के दोबारा कार्ड भेजना है। रिपोंड दिस सिवू प्ले, यानी प्लीज़ रिस्पॉन्ड। एक कार्ड फिर यहाँ से जाता है। पुराने ज़माने में कार्ड के साथ डाक टिकट लगा हुआ एनवेलप भी आता था, जिसमें आप कंफर्म करते थे कि हाँ हम 2 लोग आएंगे, हम 4 लोग आएंगे। फिर जो जितने वापस आते थे ना, वो होती थी फाइनल लिस्ट। अब क्या है जी, शमीम के 6 लड़के, सबके नाम लिख दो, 6 लड़कों ने आना ही नहीं है। अब आपने खाना बनवा दिया शमीम के 6 लड़कों का, ठीक है भाई, अज्जू अच्छा रहे, वो तो दुबई है, हमें तो याद ही नहीं था, नाम लिख दिया। अब आपने अज्जू का खाना बना दिया, अज्जू तो दुबई में बैठा हुआ है। तो उससे क्या होता है, खाना ज़ाया होता है। हर शादी हॉल के बाहर रात को क्या हो रहा होता है, खाना फेंक रहे होते हैं। ऐसा ही है भाई। फिर आप कहते हो जी मुसलमानों की शादी हो रही है। इजिप्ट में आप टेबल पे बैठते हो, आप ऑर्डर करते हो, ठीक है, जैसे जुनेद साहब बैठे, यार मुझे आप जो है ना एक बिरयानी ला दें, और एक आप मुझे कोल्ड ड्रिंक ला दें, और मीठे में ये ला दें, ठीक है। मुबीन भाई ने अपना ऑर्डर किया, उसामा भाई ने अपना ऑर्डर किया, ठीक है। जब आप निकलेंगे ना खुदाफिज करने, तो दूल्हा गेट पे खड़ा होगा, और दूल्हा आपको आपका बिल पकड़ा देगा कि जी आपने ये खाया था, ये बिल है, ज़रा पे करके निकल जाए। दूल्हे के 1 रुपये का खर्चा नहीं हुआ, शादी भी हो गई। रेस्टोरेंट वालों को क्या मिला जी, 400 लोग आ गए, 400 लोगों का डिनर हो गया। यानी मैंने लाल किला को बोला भाई मैं आ रहा हूँ, 400 लोग आएंगे, खाना खाएंगे, जो आया शादी में खाना खा के ही जाएगा ना। तो मैंने तो कुछ नहीं पेमेंट करनी है रेस्टोरेंट को, 400 लोग आएंगे और 400 लोग आए, राइट। कोई खर्चा हुआ दूल्हा का? कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और अब जिसने जेब से खाना है ना, वो फिर तमीज़ से खाएगा। यहाँ पे क्या है, भूख आती होती है आपको 1 प्लेट की, 1 प्लेट की आपको भूख है, मगर आपने बिरयानी भी इतनी डालनी है, कोरमा भी उतना ही डालना है, सलाद भी उतना ही डालना है, समझ रहे हैं आप 4 आदमियों का खाना ले आते हैं, फिर आप वो ज़ाया करते हैं, क्योंकि आपने तो 500 का नोट पकड़ा है, शमीम आंटी को पकड़ा के निकल गए, 500 में आपने खाने की माँ बहने कर दी। कहना नहीं चाहिए मगर करते ना, ऐसा ही है। ये कौन सी हिंदू सोसाइटी है? सुने मेरी बात। तो जब आपको पता है ना कि यार मैंने इतना ही मैंने बिल देना है, तो फिर आप तमीज़ से मंगाते हो, तमीज़ से खाते हो। ना दूल्हे पे वज़न हुआ कि जी 1,00,000 2 लाख का शादी हॉल बुक हो रहा है, कितने का होता है भाई? ऐसे ही होता है, 1.5 2 लाख का। फिर जनरेटर के आप अलग पैसे देते हो, 12 बजे के बाद लाइटें बंद हुई, फी घंटा 20-25 हज़ार अलग, ऐसा ही है। फिर लाइटों के अलग, डेकोरेशन के अलग, स्टेज का अलग, फूलों का अलग। सॉरी यार गला खुश्क है। कितना ज़िया करते हो पैसों का, हैं? ये सिखाया मुस्लिम सोसाइटी ने तुम्हें? अजीब बात है यार। तो मुस्लिम सोसाइटी तो ऐसे होती है। तो हम जो है ना यहाँ रह के तैयारी नहीं मानने को कि हम कौन थे। हम कह रहे हैं जी हम अरब थे, अरब कहते हैं निकल इधर से, कौन सा अरब भाई तू, कौन सा अरब? जाके शेख को बोलो ना ज़रा कि यार अस्सलाम वालेकुम, हम आपकी रूट्स में से। वो कह रहा है कौन सी रूट? वो हंटर मारेगा। मैं यार मानने को ही नहीं तैयार। हिंदू सोसाइटी है, ऑफ कोर्स इट्स अ हिंदू सोसाइटी बिकॉज इट्स अ हिंदू कंट्री। इट वाज अ हिंदू कंट्री फॉर 5000 ईयर्स। अब कहाँ 60 साल 70 साल एक तरफ, कहाँ 5000 साल की सिविलाइजेशन, राइट। अगर आप बज़िद हो कि वो 5000 माइनस कर दो। भाई सिंध की हिस्ट्री तो शुरू ही 712 AD से होती है, जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, तब से शुरू करते हैं हमारी किताबों में। यानी 712 AD से पहले यहाँ कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही है। भाई मोहनजोदड़ो क्या है फिर, 3500 साल पुराना। हड़प्पा क्या है, वहाँ से जो बुद्धिस्ट मोनेस्टेरी जो निकली यार वो कहाँ है, वो KP में है ना, वो जो एक जगह है यार, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ। इट्स वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, परहैप्स, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बुद्धिस्ट मोनेस्टेरी थी वो, और वहाँ पे बुद्धिज़्म की क्लासेस हुआ करती थी। वो आप जो है ना निकाल निकाल के तोड़ देते हो, बुतों को लानते दे रहे होते हो आप। मतलब आपकी हिस्ट्री है भाई। ओ भाई
इंडोनेशिया के नोट में, इंडोनेशिया से बड़ा इस्लामी मुल्क नहीं है इस वक्त दुनिया में, 42 करोड़ आबादी है, उनके नोट में अभी भी गणेश होता है। वो कहते हैं ठीक है भाई हम तो मुसलमान हो गए लेकिन रूट्स तो हमारी यही हैं, रूट्स नहीं छोड़ सकते। एनीवे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि कायदे आज़म को हटा के आप गणेशा लगा दो, मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि ना बिल्कुल आपने माइनस कर दी एंड सम हाउ यू बिलीव कि जी हिंदू सोसाइटी बहुत बैड सोसाइटी है। क्यों बैड है? बिकॉज आपको एक मुझे बात बताएं, व्हाट वर दी ऑड्स, ये लाइन खिंची हुई, आप यहाँ गिर गए तो ये अच्छा हो गया, ये बैड हो गया, अगर आप यहाँ गिर जाते तो वो अच्छा होता, ये बैड हो जाता। एक जगह आप कभी गए नहीं हो, कभी देखा ही नहीं है, आप कभी हिंदू से आपने इंटरैक्ट ही नहीं किया ऑन अ पर्सनल लेवल। कितने हिंदू को जानते हो आप? हाउ मेनी हैव यू इंटरैक्टेड विद? उनके कौन कौन से ओकेजन होते हैं, होली दिवाली छोड़ के और ओकेजन बताओ कितने होते हैं? क्या बिलीफ सिस्टम क्या है उनका? वेद में और गीता में फ़र्क क्या है? पता है नहीं, बस जी बेकार सोसाइटी। अरे भाई कैसे, अजीब है यार। तो ना ये चीज़ें निकाल लें आप। दूसरी चीज़ जो आप ये कह रहे हैं कि चूँकि जल्दी शादी नहीं होती तो लोग दूसरी जगह मुंह मारते हैं, तो हम जल्दी शादी कर लें। तो फिर आप ये भी कह रहे हो कि शादी सिर्फ सेक्स के लिए है, हलाल सेक्स के लिए, यानी औरत का और कोई काम नहीं है अदर देन कि वो बिस्तर पे आपके लिए रोज़ लेटी हुई हो। सो आप जो है ना उसका रोल अंडरमाइन कर रहे हैं और आप उसको डिमीन कर रहे हैं एज ए ह्यूमन, ठीक है ना। खाली औरत का या शादी का मकसद सिर्फ सेक्स नहीं होता, सेक्स एक पार्ट होता है, ये कंपेनियनशिप होती है, एक रिलेशनशिप होती है। मैं हमेशा कहता हूँ घर जो है ना एक कंपनी होता है, एक ब्रांड होता है, और उसकी सक्सेस में बहुत सारे लोगों का रोल होता है, डिफरेंट रोल होते हैं। जैसे मेरी ये कंपनी है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें एक मेंबर ये हैं जो ये कैमरा और लाइट संभालते हैं, एक मेंबर वहाँ बैठा है जो एडिट करेगा इसको, ठीक है। एक मेंबर जो है जो मेरे ऑफिस के दूसरे मामला संभालते हैं, एक मेंबर जो है वो मुझे अभी इफ्तार में चाय ला के देगा ताकि मेरा ये जो गला बार बार ख़राब हुआ हो ये सही हो, समझ रहे हैं। ये बहुत सारे मेंबर होते हैं। इसी तरह जो है ना फैमिली, कंपेनियनशिप, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। खाली सेक्स इज़ नॉट द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ अ मैरिज, इसको आप जहन से निकाल लें। अगर ये आपका जहन है तो भाई खुदा के वास्ते शादी करके किसी की ज़िंदगी ना ख़राब कीजिएगा। रही बात 30-35 साल की उम्र में शादी करने की, तो भाई ये जो है ना पहले ही हम बहुत जुआ खेलते हैं शादी में, ठीक है। बंदा इमोशनली केपेबल है नहीं है, फाइनेंशियली तो हम देख लेते हैं, वो भी सरसरी तौर पे इमोशनली केपेबल है कि नहीं है, वो चाह भी रहा है, ज़बरदस्ती के जोड़े मिला के आप कर देते हो और फिर ज़िंदगियाँ ख़राब करते हो, ठीक है। तो अब एक 20-22 साल के बच्चे को आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर दे दो कि भाई अब तू बच्चे पाल, अब ठीक है पहले ज़माने में करते थे, लेकिन पहले ज़माने में जल्दी शादियों की वजह ये होती थी क्योंकि पहले ज़माने में लोग 27-28-30 साल की उम्र में मर भी जाते थे। जो ख़वातीन 30 साल की होती थी दादियाँ होती थी, क्योंकि 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो चुकी होती थी और 15 साल की बच्ची की शादी करके वो माँ भी बन चुकी होती, तो 30 साल में औरतें दादियाँ होती थी, समझ रहे। जैसे मरीम नवाज़ है, शी इज़ अ नानी, राइट। उनको लोग मजाकन कहते हैं, मैं मजाकन नहीं कह रहा, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो शी इज़ नॉट वेरी ओल्ड, मगर क्या टाइमली उनकी शादी हुई, टाइमली उनके बच्चे की शादी हुई। अब वो है इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी, वो कर सकते हैं 18 पे, उनके वो मसले ही नहीं ज़िंदगी में। मगर आप जो मशवरा दे रहे हो ना कि जी वो पाल लेंगे और वो बेटी, ये भाई ये इस तरह अगर होता ना, इतनी अच्छी हमारी सोसाइटी होती तो क्या ही बात थी। मगर ये बड़ा गंभीर मसला है, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मगर वो जो आपने एक तो ये वाली जो बात की ना कि हिंदू सोसाइटी और ये सोसाइटी और वो सोसाइटी, तो हिंदू सोसाइटी कोई बुरी सोसाइटी नहीं है, वो हिंदुओं के लिए तो अच्छी सोसाइटी ही है, दैट इज़ देयर बेस्ट मॉडल, और वो 5000 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो राइट। तो अगर वो आगे से बोले कि जी मुस्लिम सोसाइटी को क्या पता सोसाइटी क्या होती है, तो सिर्फ 1400 साल की है, हमारी तो 5000 साल की है, तो 5000 साल वाले को ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया 1400 साल वाले को, वो भी इस तरह कह सकते हैं ना। तो इस तरह का ना ये प्लीज़ वो ना रखा करें फ़र्क। आप भी हो सकते थे हिंदू अगर आपको अल्लाह मियाँ थोड़ा सा इधर पैदा कर देते, थोड़ा सा सीधे हाथ पे करते, तो निश्तर कॉलेज की जगह आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते, आज आप बीजेपी के भक्त होते, फिर आपकी नज़र में वो बेस्ट होता क्योंकि आपने दैट्स व्हाट यू सीन। सो ना इस तरह नहीं सोचते, इससे ना फिर नफ़रतें बढ़ती हैं और वो होती हैं। खैर, तो ये है भाई, पता नहीं मैं बात कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन ये कि ये बात करना ज़रूरी थी मेरी नज़र में। हाँ जी,
Assalamualaikum, don't mention my name. I would like to narrate my issue. I'm 29, married, job holder, and individual. I got married to the love of my life back in 2018. It was a love marriage. I was deeply in love with my wife back. Then my girlfriend, that I never refused her for anything in life. I was so deeply in love with my wife back then, my girlfriend, that I never. पता नहीं क्या लिखा है यार भाई, उर्दू लिख लिया करें, मकसद समझ आए. ज़रूरी नहीं है, मैंने कभी बोला है कि अंग्रेज़ी में ईमेल भेजो, मकसद समझ आए. What she said, I accepted that as it is. May it be right or may it be wrong. I admit that this was my fault, but I used to do these things just not to let her go. Now, when we are married, we came to know that we have huge financial imbalances in our family backgrounds. She's from a rich family and I'm from a middle class family. I can't afford her expenditures और इसी चीज़ को लेकर हर वक्त हमारी लड़ाई रहती है. I'm trying my best to overcome our issues, but I'm helpless. I don't want an advice cutting short my expenditures. Rather, I would like to get financial guidance. I'm living in Malir, Karachi. मुझे पहला वाला पार्ट समझ नहीं है, दूसरा वाला अब देखो. शादी के बाद पता चल रहा है कि जी हमारे तो बड़े ह्यूज फाइनेंशियल डिफरेंसेस थे. मतलब देखा ना आपने, कितना गुड्डा गुड़िया की शादी बनाई हुई है लोगों ने. बस शादी कर लें हम पहले, फिर हम देखेंगे करना क्या है. कितना अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. और ये इट्स नॉट दी ओनली ईमेल, इस तरह की 5000 ईमेल्स रखी हुई है मेरे पास. अब इससे क्या है, अपनी भी ज़िंदगी अजीरन कर रहे हैं, उसकी भी कर रहे हैं, और अगर कोई तीसरा आ गया तो उसकी भी ज़िंदगी अजीरन. भाई ये चीज़ें पहले देखने की होती हैं यार. ये मजाक बनाया हुआ आपने शादी को. अबे यार भाई, देख रहे हो आप, वो भी सर पकड़ के बैठे हुए, ये मजाक चल रहा है. अबे भाई क्या बोले यार. जो मेरे जितने भी समझदार दोस्त हैं ना, वो सारे सिंगल हैं, क्योंकि वो बार बार ना उसको वर्कआउट कर रहे कि अच्छा मैं अगर ये करूँ तो ये हो जाए, ये करें. और जो सोच ही नहीं रहे वो धड़ाधड़ कर रहे हैं, उनके बच्चे भी धड़ाधड़ हो रहे हैं. ये मसला है. तो जो इर्रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो तो धड़ाधड़ शादी करके मज़ीद इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं इस मुल्क में. और जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं वो सोच विचार के डिसीजन ले भी अगर रहे हैं तो एक मैक्सिमम 2 बच्चे कर रहे हैं. और जो इर्रिस्पॉन्सिबल है, अभी पता ही नहीं नौकरी है नहीं है, अम्मा अब्बा खिला रहे हैं, या फिर ये कि बाद में पता चल रहा है कि जी अच्छा वो तो रिच थी, मैं तो अमीर नहीं था, मैं तो गरीब था, राइट. वो धड़ाधड़ बच्चे किए जा रहे हैं. यार कसम खुदा की यार, पता है क्या, मैं कल ही अपने दोस्त से यही बात कर रहा था. मैं ना ये ईमेल्स पढ़ के 1.5 दिन में डिप्रेशन में चला था. अभी इफ्तार के बाद मुझे जानी थी वो एक फूड व्लॉग बनाने. मैं ना अब कोड़ता हूँ फिर इन चीज़ों से. ओ भाई, ये चीज़ें पहले देखने की होती हैं कि भाई मैं तेरे खर्चे अफोर्ड कर सकूँगा कि नहीं. जब पूरी पूरी रात जैज़ का वो लगा के, क्या 5 रुपये घंटा, दुनिया में कभी सुना है पूरी रात बात करें 5 रुपये में? क्यों के रात को सोना होता है, रात सोने की है. पूरी दुनिया में आपको कहीं ऐड नहीं मिलेगा. जिस वेस्ट को आप गालियाँ देते हो, अमेरिका कंजर, इंग्लैंड ये 2 नंबर, यूरोप जो है ना गलीज नंगे घूमते हैं, उन मुल्कों के फ़ोन के बिल उठा लें, कितनी महंगी है कॉलिंग वहाँ पे. अबे 2-2, $250 के बिल आ जाते हैं लोगों के. करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बताएंगे लोग. मैं यूएई में था भाई, यूएई में 250-300 दिरहम आ जाता था, जो कि यहाँ के तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये बनता है. अबे तुम 5 रुपये में पूरी पूरी रात बातें करा रहे हैं यहाँ पे. क्यों पाकिस्तान में ऐसा क्या 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 तांबा निकलता है हमारे यहाँ से इतना कि जी फ़ोन की लाइनें इतनी चीप है कि जी फ्री में बात करो. हर चीज़ तो यहाँ महंगी है. चीनी तो लाइन लगा के 85 रुपये की मिल रही है, फ़ोन पे पूरी रात बात कर लो. ये क्यों? ओ भाई, सिस्टमैटिकली बिगाड़ा गया इस कौम को, इस जनरेशन को. 20 साल लगे, बिगाड़ दिया. टीवी पे 3rd क्लास आइटम दिखाए रमज़ानों में. अबे यार मतलब सोचो यार, मुझे ये ना, मैं बहुत सीरियस बात करने लगा हूँ. और मुझे बताएं, टीवी आप पूरा साल उठाएं, जहाँ इकोनॉमी की बात होगी कैसर बंगाली साहब होंगे या मार हबीब खान साहब होंगे, ये साहब होंगे जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, जिनको इन चीज़ों का पता है. ठीक है. ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात होगी तो या तो मारवी शर्मा साहिबा होंगी या फिर शेरी मज़ारी होंगी वगैरह वगैरह, जो कि ह्यूमन राइट्स को समझती हैं, उस पर उन्होंने काम किया है, ज़िंदगियाँ दी हैं, राइट. आप जो है ना पॉलिटिक्स की होगी तो आपके पास एनालिस्ट होंगे ही होगा. लेकिन जहाँ मज़हब की बात आएगी, कोई भी आके बेच दे, कोई भी आके. अबे मैं कर लूँ रमज़ान का शो, मुझे क्या पता है इस्लाम का, क्या मेरी क्या नॉलेज है.
10-12 सूरतों के अलावा मुझे नहीं आती सूरतें, ठीक है ना, बेसिक्स नहीं पता, बस शक्ल अच्छी और रमज़ान का शो पकड़ा दिया, ऐसा ही है भाई टीवी पे यार। मतलब जो मैं किसी पे फिंगर्स पॉइंट नहीं कर रहा, मगर यार खुदा के वास्ते अल्लाह रसूल का नाम आप ले रहे हो तो यार किसी ऐसे बंदे से लो जो जो जिसका वो काम है, मतलब कोई वो दीनी हलके का हो, दीनी मदारिस से ताल्लुक़ हो, वो डिग्री याफ्ता हो। मतलब जो लोग रमज़ान के शो होस्ट कर रहे होते या आ रहे होते ना, आप उनकी इंस्टा स्टोरीज रमज़ान से एक हफ्ते पहले की देख लें, वो पार्टियां कर रहे थे, ठीक है। अगेन मैं किसी पे फिंगर्स नहीं पॉइंट कर रहा यार, इनका पेशाब का ही टेस्ट करा लिया करो कि यार आपने कोई शराब तो नहीं पी हुई थी 40 दिन पहले, आपने यहाँ पे खड़ा होके अल्लाह रसूल का नाम लेना है, ठीक है, या आपको ड्रग्स तो नहीं लेते, ये तो नहीं लेते, मतलब कोई 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 चेक एंड बैलेंस नहीं है। कितनी गलत बात है। हर चीज़ में आप उस चीज़ का एक्सपर्ट, मज़हब के लिए किसी को भी बैठा दो, तो फिर यही हाल है हमारा जो हमारे मुल्क का है। सो रॉन्ग यार, नहीं करना चाहिए। वो ये मैंने बात कहाँ से शुरू की थी, मेरे जहन से निकल गई। मगर ये जो आपने ना रिच बैकग्राउंड है, ये चीज़ें पहले देखने की होती हैं कि यार मैं इसको अफोर्ड कर पाऊँगा कि नहीं, इसके क्या शौक़ हैं, जितनी मेरी तनख्वाह है उतनी इसकी। एक मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो बैंक में काम करते हैं, वो एक रिश्ता देखने गए, लड़की जो थी वो अच्छे बैकग्राउंड से थी, मतलब खाते पीते घराने से, तो उसने लड़की ने ना ठक से पहली मुलाकात पे बोल दिया कि मेरा तो साल का ट्रैवल ही 12-14 लाख का है। तो साहब ने आके कैलकुलेट कर लिया, तो मेरी तो तनख्वाह पूरे साल की ही 14-15 लाख है। तो वो फिर दूसरी बार गए ही नहीं उनके पास। सही किया लड़की ने, बता दिया भाई अगर अफोर्ड कर सकते तो ठीक है, नहीं तो आप कोई और देख ले, मैं कोई और देख लूँगी। आप पहले बता दो ना, ये कि अच्छा हमने कर ली, वो अम्मी ने अंगूठी पहना दी थी, मैं ना नहीं कर सकी, तो भाई मेरा तो ये है। अरे तो भाई पहले बोलती, इतना मेरा पैसा लग गया, ये लग गया, वो लग गया, अब तुम आके बोल रही हो, तो ये गलत बात है। तो ये भाई सरासर आप गलत हैं इसमें, ये चीज़ें आपको पहले करनी चाहिए थी। और ये जो सुन रहे हैं ना, पहले डिस्कस कर लें हर चीज़, फाइनेंसेस, बच्चों के नाम तो रख ले, तो आज की मुश्किल में हमारे बेटे का नाम ये होगा, मीकाइल होगा, क्यों जी मीकाइल वो टीवी पे आता है, या ईसा होगा क्योंकि मोमिन साकिब ड्रामे में ईसा बना हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये वाली चीज़ें पूरी कर लेते हैं कि नाम क्या होगा। अबे काम क्या होगा ये तो करते नहीं हो डिसाइड, काम क्या होगा, तेरा काम क्या होगा, मेरा काम क्या होगा, ये नहीं पता। अबे भाई नॉन सीरियस, शादियां बैन कर दो, उस पर तो ना भाई बाकायदा गवर्नमेंट बैठे पुलिस वाले के साथ कि भाई क्यों कर रहा है, तू किस काबिल है। अबे राइट ही नहीं देना चाहिए लोगों को। अबे भाई जहालत फैला रहे यार, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है भाई जहालत फैलाने से। एनीवे, तो भाई ये चीज़ें आपने पहले करनी होती हैं, अब आप भुगते इसको। मैं तो यही कहूँगा, मेरे पास क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का। एक्सपेंडिचर आप कितने काट लेंगे, वो एक सर्टन लाइफस्टाइल से आई हैं, उनको तो एसी चाहिए पूरी रात। आप रोक रोक के पंखा चलाने वाले या रोक रोक के कूलर चलाने वाले, ऐसे ही होता ना भाई, 2 घंटे चलाया, अलार्म लगाया, बंद कर दिया, बिजली का बिल ज़्यादा ना है। वो खुला यूज़ करने वाली 16 पे, आप 28 पे, आप 28 वाले, वो 16 वाली, 16 लगा के कंफर्टर ले लेते हैं। अबे तो इतनी ठंडी ना करो कंफर्ट, बस भाई लोग हैं कंफर्टर के बगैर नींद नहीं आती। तो भाई अब मैं इसका कुछ नहीं बता सकता आपको, ये पहले करनी थी आपने, अब ये यू सॉरी टू से। सजेशन नीडेड फॉर अ होम अबाउट टू ब्रेक, अल्लाह रहम करे। हाय जुनेद, रमदान करीम, wishing you good health. My question is for a friend who's in her 30s. I'd appreciate if your wife can give her opinions too regarding this matter. Well, sadly she is not here with me, तो अभी तो फ़िलहाल मैं ही डिस्कस कर लेता हूँ। My friend who's in Pakistan belongs to a wealthy family. A little background of hers: she got married to her cousin and got divorced within a year or so because of his drug and alcohol abuse. Since then, she got a proposal from a guy who was a bit older, as this was after a couple of years after marriage. Her parents wanted her to get married. अच्छा, यानी पहली डिवोर्स की 1-2 साल बाद. They didn't force her, but she was feeling as a burden on them and decided to get married. Before marriage, that guy declared about his secret first marriage and a child from her. यही से रेड फ्लैग लग रहा है. He was fully supporting them financially but not living with them. My friend said yes because he looked reasonable and honest. This marriage was just a contract because he married his friend's to be wife. Because the guy didn't show up on the wedding and he acted like a savior. अच्छा, so basically, okay, तो यानी मंडप किसी और का था, साहब नहीं पहुँचे तो उन्होंने इज्जत रखने के लिए शादी कर ली,
लेकिन इज्जत रखने के लिए बच्चा भी कर लिया, ठीक है भाई, साथ नहीं रह रहे। दिस मैरिज वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा ये हो गया। ही हैड अर्ली इंटीमेसी बट डजंट विजिट हर और स्टे विद हर सिंस अ फ्यू ईयर्स, दैट्स वॉट ही सेज, डजंट गो फॉर लॉन्ग ट्रिप्स आइदर। इट्स बिन 10 years now, they have 2 kids, अच्छा अब जाते भी नहीं है, 2 बच्चे भी पूरे हैं। They have 2 kids. My friend says her husband is spending extra on his first wife. First wife used to live with her parents but now has her own house and a car. All the expenses are managed by her husband to the extent that he doesn't bother now to spend on his other 2 children from my friend. Okay. अच्छा सॉरी, इनके साथ दूसरी शादी हुई है 10 साल में। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। ही हैज स्टार्टेड टू हाइड हर मैसेजेस एंड इज थ्रेटनिंग माई फ्रेंड दैट he'll divorce her if she doesn't accept this. My friend is financially stable because her dad has some sort of monthly income organized for her. That has made her husband lazy to spend anything on them. My friend is on the verge of walking out of the relationship. No one on either sides of the family knows about his marriage. My suggestions were to speak to her brother so that she can get some emotional support and there can be someone who can confront her husband. She doesn't want to do that because her brother is married into a family that will expose every tiny detail into the extended family. Consider that she was married before in the same family too. Oh God. Her father is no more, her mom is not well, so she asked me for suggestion. I've made her realize that this is what you agreed for in the first place. Now suck it up and live with him. Don't torture him to finish all relationships with his daughter from the first marriage because he won't let her go. She's adamant to make him leave his first wife and spend wisely on his daughter and the other 2 children. Please advise what to do. How should I make her realize that walking out is quitting? She needs to navigate him, but he's very stubborn in his decision. Even if she gets divorced, she won't reveal his first marriage to her family or his family. I'm stuck and want to save her from the heartbreak, as she loves him a lot. Uh, okay. Regards from, in case you're wondering if I'm a guy. अच्छा नहीं नहीं, I know you're a girl, आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है ऊपर। Anyway, so basically सीन ये है कि जिन्होंने ईमेल की, इनकी एक दोस्त है, इनकी एक पहली शादी, इनकी दोस्त की पहली शादी हुई, साल में डिवोर्स हो गई क्योंकि ड्रग यूज़ था, कज़न थे, अपनी कज़न को नहीं जानते लोग, मतलब खैर एनीवे वो हो गया। फिर दूसरी शादी हुई, तो जो दूसरी जिन साहब से हुई उन्होंने पहले कहीं एक शादी की हुई थी किसी को किसी की इज्जत बचाने की खातिर, और वहाँ से उनकी एक बेटी भी है और उसको 10 साल हो गए। नहीं सॉरी, वो शादी पहले से थी क्योंकि उनके दोस्त की शादी थी, दोस्त शादी पे नहीं आए तो इन्होंने शादी कर ली। मतलब मुझे ये कहानी समझ नहीं। अच्छा, ये वाली बात किसी को पता नहीं है, इन्हीं को पता है। अब इनके 2 बच्चे हो गए, उनके साथ 10 साल से शादी है। अब चूँकि ये वेल्दी हैं, इनके फादर इनको एक अलाउंस देते हैं, तो हस्बैंड ने इधर स्पेंड करना छोड़ दिया और वो सारा स्पेंड उधर कर रहे हैं। अब ये कि ये थोड़ा सा सिचुएशन में फंस गई है। तो वो देखें इसका सोल्यूशन क्या है, ये तो जो रह रही हैं वो ही बता सकती हैं कि व्हाट डज शी वांट इन लाइफ। मगर टू एक्सपेक्ट कि वो पहली बीवी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। कभी भी नहीं छोड़ेंगे वो अगर छोड़नी होती तो वो पहले ही बस भाई इज्जत रखनी थी शादी तक ना, बाद में छोड़ देते। तो उन्होंने अगर वहाँ नहीं छोड़ी और फिर एक बेटी भी हो गई, ज़ाहिर है फिर बेटी जो पहली औलाद अगर उनकी वो है, एक अफिलिएशन भी होगी। ये जो है ना एक्सपेक्ट करते हैं लोग, बोथ मेन एंड वेमेन, कि जी उसको छोड़ दो। तो जो किसी पहले को और स्ट्रॉन्ग मोहब्बत को छोड़ सकता है ना, वो फिर किसी को भी छोड़ सकता है। तो अगर वो आप समझती हैं कि आपके लिए उसको छोड़ देगा, तो कल को आपको भी छोड़ सकता है, राइट। तो वही वाली बात है जो आपने भी अपनी दोस्त को सजेस्ट किया कि इसी में रह के नेविगेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप फ्लेक्स हों, थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबल हों। अब ये वाली बात जो आपने घर में नहीं बताई हुई, देखें ये चीज़ शुरू में ही डिस्कस करनी चाहिए थी, मगर अब चूँकि टाइम बहुत गुजर गया है। मगर ये कम से कम आप अपने भाई को तो कॉन्फिडेंस में ले सकती हैं, ताकि वो थोड़ा सा उनको टाइट तो करे साहब को। मगर वही वाली बात है, हमारे यहाँ तो ये है ना, जिसने बहन दी हुई होती है तो वो ब्लैकमेल ही हो रहा होता है इन शॉर्ट्स के। ज़ाहिर है वो भी सोच रहा होता है कि यार मेरी बहन की इज्जत है, का घर ना टूट जाए, ये ना हो जाए। भाई जोश में तो बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं मर्द आपस में, मगर जो बहन वाला भाई होता है ना,
वो थोड़ा सा धीमा ही रहता है क्योंकि यार बहन का मामला है, राइट। तो वो भी क्या ही कर लेंगे, तो वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अब ये है कि आप इफ़ यू वांट टू लिव विद दिस गाय तो फिर अब आप उसी में नेविगेट करें, मगर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल, और थोड़ा सा ये भी ना दिखाएं कि जी पैसे मेरे आ रहे हैं तो वो ढीले ना पड़ जाएं। तो आप भी थोड़ा सा शो करें जी अब वो पैसे नहीं आ रहे, घर से अब नहीं आ रहे, वो आना बंद हो गए, कोई भी वट एवर रीज़न बना दें, ठीक है, ताकि उनको एहसास ज़िम्मेदारी तो हो। और ज़ाहिर है आपके बच्चे हैं, उनके साथ दो हैं, तो उन पर भी तो स्पेंड होना ज़रूरी है। ये तो उनको एज अ रिस्पॉन्सिबल फादर खुद फील करना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो ज़रा समझा दें। तीसरा रीज़न, तीसरा ये कि आप अगर उनको छोड़ भी दें तो फिर आपका क्या फ्यूचर है। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहता, मैं कभी भी नहीं सजेस्ट करता कि आप टॉक्सिक मैरिजेस में सिर्फ इसलिए रहें क्योंकि फिर बाद में क्या होगा। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, काम कर सकती हैं, तो आप सपोर्ट कर सकती हैं। अगर आपकी फैमिली वेल टू डू है, आपका एक बिज़नेस है, तो आप वहाँ से भी मैनेज कर सकती हैं, प्रोवाइडेड इफ़ यू वांट टू गो दैट राउट। मगर वो लिखा है कि आप उसके अगर खुदा ना खासा डिवोर्स भी हुई तो उसके बावजूद भी आप नहीं बताएंगी अपनी फैमिली में। अब ये एक बड़ा अजीब सा सिचुएशन है कि आपने क्यों नहीं बताई। ये चीज़ पहले डिस्कस करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने आपको बता दी तो आप भी किसी को बता देती। ये आपने जो फील किया ना कि मैं शायद अपने पेरेंट्स पे बर्डन हो रही हूँ तो फिर मैं कोई भी रिश्ता आएगा ले लूँगी, और फिर आपने शायद यही सोच के इस चीज़ को खातिर में नहीं लाया। देखिए, ये जो बैगेज होते हैं ना, प्रीवियस रिलेशनशिप वाले, प्रीवियस शादी हो या दूसरी पहली शादी हो, ये ना हमारे यहाँ अक्सर रेड फ्लैग ही होते हैं। नहीं मैनेज कर पाते लोग, इंसाफ नहीं कर पाते, और फिर आप वक्ती तौर पे देख लेते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स पे मैं बर्डन हो रही हूँ, चलो मैं शादी कर लेती हूँ, बाद में संभाल लूँगी। फिर बाद में ये होता है कि अब 10 साल भी हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, अब छोड़ भी नहीं सकते, एक एसोसिएशन भी हो गई है, प्यार भी हो गया है, अब क्या करें। तो अब जो है सिचुएशन निकलती हैं। तो ये ना किया करें। इस तरह की जो प्रीवियस रिलेशनशिप्स हैं कि जी मेरी एक बीवी है, मैं उससे मिलता नहीं हूँ, मैं तुमसे ही मिलूँगा, ये इस पे ना आया करें, क्योंकि पहली बीवी ही होती है, कुछ भी कर लें आप, ऐसे ही है भाई। तो ये तो ऑफ सीन हो जाता है। तो मैं वैसे उन लोगों को कह रहा हूँ जो लोग शायद इस सिचुएशन में हैं या होने जा रहे हैं, जहाँ पे एक ऑलरेडी पहले से खातून इन्वॉल्व है, चाहे इमोशनली या फिर वो शादी में, यू नो। तो इट्स ऑलवेज रेड फ्लैग इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, मगर ये कि वो फिर चीज़ें, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो, और फिर ये कॉम्प्लिकेशंस ही क्रिएट करता है। ज़ाहिर है शुरू में आप जब जब नई बीवी होंगी तो आप पे ज़्यादा टेंशन होगी, फिर वक्त के साथ साथ जब आप फेड होती रहेंगी तो फिर जो पुरानी है ज़ाहिर है सबकत तो उसी को मिलेगी, राइट। तो ऐसी सिचुएशंस में ना भाई पहले ही बात कर लिया करें, ये आगे जाके फिर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इसमें मेरा मशवरा तो खैर कोई ऐसा सच नहीं, मगर मैं एक ओपिनियन ये दे सकता हूँ कि आप उनको जितना भी फोर्स कर लें, अगर वो ज़िद्दी आदमी है तो आप अपने 10 साल के बच्चे को नहीं कुछ चेंज कर सकती, तो वो तो एक बड़ी उम्र का आदमी है, ट्वाइस मैरिड। तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो उनको छोड़ देगा, तो ऐसा तो सीन मुझे नहीं होता हुआ दिखता। और अगर उनको छोड़ भी दे तो इसकी क्या गारंटी है कि कल को किसी और के लिए आपको नहीं छोड़ सकता। सो इट्स नेवर अ गुड सोल्यूशन। जो है उसी में रह के करने की कोशिश करें, अगर तो आपका गुजारा उसमें हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मामला सही नहीं है एंड यू आर नॉट हैप्पी, तो मैं तो यही कहता हूँ भाई अपनी हैप्पीनेस को पहली प्रायोरिटी रखें। कुड़ कुड़ के जीना, एक ही ज़िंदगी मिलती है भाई, ठीक है ना। कुड़ कुड़ के जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सोच लेना कि भाई चूँकि मैंने यहाँ इतनी तकलीफ़ें गुजारी हैं तो अल्लाह मियाँ की जन्नत मेरे लिए रेडी है, इसका अब क्या बंदा कह सकता है। तो ये भी जो है ना, फिर अल्लाह ताला भी आगे से कहता है भाई इंसान, मैंने तुझे अकल दी है, मेक अ बेटर डिसीजन फॉर योर सेल्फ, राइट। तो लोग थोड़ा ना इस तरह भी डिनाइल में चले जाते हैं, भाई चूँकि मैं यहाँ सफरिंग में हूँ, चाहे वो सेल्फ क्रिएटेड ही हों, सेल्फ क्रिएटेड वॉल्स हों अपनी, बस वो ये सोच लेते हैं कि जी चूँकि मुझे यहाँ अजियत है तो आगे तो मेरे बल्ले बल्ले, तो चलो मैं यहाँ सह लेती हूँ थोड़ा और, या 10 साल हो गए ना 20 और गुजर जाएंगे। ये गलत एटीट्यूड है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी अमानत है अल्लाह ताला की, तो उसको खुश असलूबी से ही गुजारें और मामलात ऐसे ही रखें जहाँ पे बेहतरी हो, ठीक है। तो मुझे ये कंसिडरिंग इस ईमेल के हिसाब से, आई डोंट नो यू, आई डोंट नो द गाय, मैं कभी मिला नहीं हूँ, कभी बात नहीं की है, इस ईमेल के हिसाब से, एंड नोइंग हाउ मेन ऑपरेट इन पाकिस्तान,
पहली बीवी कभी भी नहीं छोड़ते। एक सिचुएशन मेरे पास आई थी बहुत पहले पर्सनली, उस वक्त तो ये Q&A का सेशन ही नहीं था, इनबॉक्स पे आई थी, फिर मेरी खातून से ज़रा सलाम दुआ भी हुई। तो वो हुआ ये था कि वो उनके पहले हस्बैंड गे निकले, ठीक है, तो इन्होंने उससे भी डिवोर्स ले ली। अब चूँकि डिवोर्स ले ली, अब हमारे यहाँ सोसाइटी में तो ये होता ना कि अब वो जो है किसी काम की नहीं रही। तो फिर उनकी किसी से मुलाकात हुई ऑनलाइन, उन्होंने बोला भाई मेरे पहले से बीवी बच्चे हैं, मैं निकाह में आ जाऊँगा तुम्हारे और मैं विज़िट कर लिया करूँगा तुम्हें ऑन अ वीकली बेसिस। सो दे स्टार्टेड डूइंग दैट। अब ज़ाहिर है, अब चूँकि बिकॉज हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जी डिवोर्सी हमने ये बनाया हुआ है, हालांकि ऐसा है नहीं, इट्स ऑल इन योर हेड कि जी अब इसका कुछ नहीं है तो अब जो मिल रहा है पकड़ लो। तो उनको लगा कि यार मुझे तो अब मेरी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है बिकॉज मुझ पे डिवोर्सी का लेबल है। तो अब जो भी साहब आए उन्होंने वो उसने कर लिया निकाह, उससे उनकी बेटी भी हो गई, ठीक है। अब वो हफ्ते में एक बार आते थे, ठीक है, जो उनकी ड्यूटी थी वो करने, और चले जाते थे क्योंकि उनके पहले बीवी भी थी, बच्चे भी थे। और फिर ज़ाहिर है बच्ची बड़ी हुई। अब बच्ची जब इतनी बड़ी हो गई तो बच्ची ने पूछना शुरू किया कि यार बाप मेरा 6 दिन का होता है। फिर उनको ये कंसर्न था कि जब और बड़ी हो जाएगी, 15 साल की हो जाएगी, तब तो ये समझ जाएगी कि यार ये सीन क्या हो रहा है। अच्छा, तो साहब जो है ना कभी शॉपिंग पे ले जाए ना कभी खाने पे, क्योंकि ज़ाहिर है पकड़े जाएंगे, कोई ना कोई देख लेगा। तो उस 6-8 साल की शादी में उन्होंने 3-4 बार बाजार गए, और पता है किस तरह, बीवी उस फुटपाथ पे, खुद इस फुटपाथ पे, और वो हैंड्स फ्री पे कि अच्छा यहाँ मुड़ जाओ, अच्छा यहाँ मुड़ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, ये लेना है ले लो, अच्छा तुम वहाँ से उठा लो, मैं यहाँ पेमेंट कर रहा हूँ। मतलब साथ चले भी नहीं। सोचें आप, जो भी ख़वातीन सुन रही हैं, यूर आउट ऑन अ डेट विद योर हस्बैंड, और आप इस तरह जैसे आपने कोई जुर्म किया है, आप छुप छुप के इस तरह जा रहे हो। वो होता ना यार, वो कॉलेज में नहीं डेटे मारते थे छुप छुप के यूनिफॉर्म में, यार पुलिस ना पकड़ ले, ये ना पकड़ ले, घर वाले ना देख लें। सोचा आपने शादी की है, निकाह किया है, हलाल काम किया है, और आप इस तरह छुप छुप के, जिस तरह वो यार सदर में कौन सा होटल है, खैर बदनाम होटल तो बड़े हैं, जब वहाँ से निकलते हैं ना कपल तो यूं 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 करके निकलते हैं, एक वहाँ निकल जाता है एक वहाँ निकल जाती है, ताकि कोई पीछा भी कर रहा है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाए किसके पीछे जाऊँ, समझ रहे हैं। अबे कौन सा होटल है, फैल्कन वो बड़े होटल है सदर में। तो इस तरह, तो जाहिर है एज अ वुमन शी फेल्ट इंसल्टेड कि ये क्या मजाक है, मैंने शादी की है, मेरी औलाद है तुमसे। बस वो उनके थे कि जी मैं, मेरी बीवी ने अगर पकड़ लिया तो ये हो जाएगा, मेरे साले मुझे मार देंगे वगैरह वगैरह। बहुत हुआ बहुत हुआ बहुत हुआ, 7-8 साल 10 साल ऐसे शायद गुजर गए। वो हफ्ते में एक ही बार है, और कोई तस्वीर में साथ नहीं। बेटी की सालगिरह है, सालगिरह हो रही है, तस्वीरें खींचनी है, साइड पे लगे खींचो, एक तस्वीर में नहीं। क्योंकि भाई उनको जो है ना, मैं तो खैर वो उनकी कॉल सुनते ही समझ गया था कि वो सीन क्या है। उनको बस ये था कि जी हलाल सेक्स ऑन द साइड, जिसका गुनाह भी ना हो। हर सैटरडे आपको एक मच यंगर एंड टाइटर लड़की अवेलेबल है, और कोई कोई वो भी नहीं है, मतलब आप दरवाज़ा खटखटा के सीधा जा रहे हो, बाप भी नहीं रोक रहा, भाई भी नहीं रोक रहा, कैसे रोक सकता है, शादी की है, राइट। तो आपको साइड में एक जर्दा मिला हुआ है, बिरयानी घर में अलग है, जर्दा मिला हुआ है। मैं कहना नहीं चाहिए, सॉरी टू यूज़ दिस एग्जाम्पल्स, मगर ये सोच है लोगों की। तो वो चलता रहा, फिर उसके बाद दे फाइनली गॉट डिवोर्स, क्योंकि साहब ने बोला भाई मैं पहली बीवी तो छोड़ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरे 4 बच्चे हैं वहाँ पे, 3 पता नहीं जितने भी बच्चे थे, नहीं छोड़ता, मरता कभी भी नहीं छोड़ता। तो ये जो ख़वातीन ये सोच के देखो, कोई भी शौक से किसी की दूसरी बीवी नहीं बनती, लोगों की सारे मजबूरियाँ होती हैं, किसी को कोई मिल नहीं रहा होता, यही वायबल ऑप्शन आ रहा होता है। लड़के तो फारिग हैं 20 से 30 वाले, वो तो सेटल्ड ही नहीं है, और लड़कियों के अपने ख्वाब होते हैं, ज़ाहिर है उनको पूरी ज़िंदगी क्या बोला होता है, तुमने ट्रैवल भी नहीं करना, गाड़ी कोई घूमना फिरना भी नहीं है, ये भी नहीं करना, ये सब तुम्हें कोई करा के देगा। तो भाई जिसने कराना है तो फिर जिसके पास पैसा होगा वही कराएगा ना, या 23 साल का बच्चा कराएगा हैं। अगर मम्मी ने बोला कि बेटा ट्रैवल करना है, हस्बैंड कराएगा, तो ट्रैवल फिर कोई वही कराएगा ना जिसके पास पैसा ही है भाई, जिसके पास पैसे होंगे वही कराएगा। तो फिर वो, फिर आप कहते हो गोल्ड डिगर क्यों है भाई, आप उसको ना काम करने देते हो और उसकी सारी ख्वाहिशात इसलिए दबाते हो कि यार कोई और आके, कोई सेवियर आएगा और तुम्हारी वो ख्वाहिशात पूरी करेगा। तो ज़ाहिर है शी विल ऑब्वियसली लुक फॉर समवन जो उसको मालदीव्स लेके जा सके, या मलीर वाला ढूंढेगी, वो मालदीव्स वाला ही ढूंढेगी ना, क्योंकि उसको तो घूमने नहीं दिया। तो आप कहते हो गोल्ड डिगर है,
काम करने नहीं देना, फिर कहते गोल्ड डिगर है। अजीब बकवास। तो वो उन्होंने बोला भाई मैं तो नहीं कर सकता, और फिर वो इवेंचुअली डिवोर्स हो गई। तो अब देखो ना, वो बच्ची है, बच्ची तो हो गई है, बच्ची तो ज़ाहिर है बाप ढूंढती है, बाप शफकत का हाथ होता है, बाप जैसा भी हो बाप बाप होता है। अब उस बच्ची की क्या ज़िंदगी, एक इनकम्प्लीट डिसफंक्शनल ज़िंदगी। अल्लाह अल्लाह रहम करे, बहुत दुआएं, बहुत अच्छी खातून है वो, नफीस खातून है, बहुत शरीफ औरत है, और उन्होंने शराफत का ही रास्ता अख्तियार किया। करने को बड़ा आसान था भाई, इनबॉक्स तो भरा होता है, नाइस पिक डियर, किसी को भी बुला लो, बंदा डेट पे चला जाए, है ऐसा है ना भाई। औरतों के लिए तो 2 मिनट का काम है, सबसे आसान काम है, जिसके साथ चाहे, राइट। उन्होंने शराफत का रास्ता अख्तियार किया, ये सोच के कि यार चलो मैं किसी के बीवी होंगी, मनकूहा होंगी। आगे से उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ और रखा हुआ था हिसाब किताब। तो ये हिसाब किताब है भाई। तो आप जो भी ख़वातीन ये प्लान कर रही हैं कि चलो मैं वक्ती तौर पे इसकी दूसरी बीवी बन जाती हूँ, फिर मैं जो है ना, मैं वो चीज़ें करूँगी जो ये पहली वाली नहीं करती, तो फिर ये मेरे पास ही रहेंगे, और फिर इवेंचुअली वो छोड़ के आ जाएंगे। यानी कि लाइक फॉर एग्जांपल कि ज़्यादातर कंसर्न्स क्या होते हैं कि जी वो अपने आप को मेंटेन नहीं रखती, तो मैं फ़िट रहूँगी। दूसरी बीवी हमेशा फ़िट होती हैं ज़्यादातर, ऐसा ही है भाई, जो हमने नोटिस किया है, राइट। अच्छा वो मोटी है तो मैं जिम में पूरा करूँगी, आई लुक आफ्टर माई सेल्फ, या फिर ये कि दूसरी चीज़ों में जो भी शिकायत है, अज्यूमिंग कि वो फिर उसको इवेंचुअली छोड़ देगा, बिकॉज उसको जो चीज़ चाहिए वो यहाँ से सब मैसर है, तो फिर वो वहाँ की। लेकिन नहीं, औलाद वाली जो है ना, वो सीन ही डिफरेंट होता है। उसके लिए फिर ना बंदा किसी के साथ भी रहने को तैयार होता है, क्योंकि वो फिर अपना घर डिसफंक्शनल नहीं करना चाह रहा होता। सो ये सोच के कि आपने दूसरी शादी कर ली कि मैं पहली से छुड़वा लूँगी, बहुत से छुड़वा भी लेती हैं, ऐसा नहीं है, मगर ये कि 9 out of 10 times यूर ड्रीमिंग, नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। ही इज़ ओनली विद यू बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स, और जब तक वो फ्रेश होंगे मामलात तो वो रहेंगे आपके साथ। फिर जब वो स्टेल हो जाएगा, वो लगा ओके शी इज़ जस्ट अनदर वुमन, तो वो फिर ज़ाहिर ही इवेंचुअली गो बैक टू द फर्स्ट वन। सो ये नॉर्मली ये प्रैक्टिस है यहाँ पे। यार मैन, इट्स वेरी सैड टू हेयर। एक ही मसला है सबका, शादियाँ, और एक ही काम करते हैं हम, है भाई मुल्क में और क्या काम होता है? शादियाँ टाइम पे बराबर हो रही हैं, और क्या काम हो रहा है? सड़कें बन रही हैं, स्कूल बन रहा है, अस्पताल बन रहे हैं, क्या काम हो रहा है? शादी बच्चे, ये टाइट हो रहे हैं, और ये मैं भरी पड़ी है, ये मैं हूँ अकेला, मेरी तो कोई इतनी वाइडर ऑडियंस भी नहीं है। अब आप ये सोचें, मेरी तो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी ऑडियंस है, और हर तरह के लोग हैं पाकिस्तान में। तो अगर मेरा फेम का लेवल जो है टीवी आर्टिस्ट वाला होता, या क्रिकेटर वाला होता, या टिकटॉकर वाला लेवल होता फेम का, कैसी कैसी और ईमेल्स आती हैं, आप ये सोचें। ओके, लॉस्ट मनी इन क्रिप्टो, रिग्रेट टेकिंग मी ओवर सीइंग क्रिप्टो राइज विदाउट मी, है ये तो गाने का लाइन लग रही है। सलाम जुनैद भाई, प्लीज डू नॉट डिस्क्लोज माई नेम एंड सिटी। My story begins when 2 years back I took 1 lakh rupees from my father to invest in crypto. Until recently, when that money got doubled, I sold my holdings, turning 1 lakh into 2.5 lakh in January. I sold in January. Then what happened was, वो कौन सा मनूस दिन था कि I got into futures trading. फ्यूचर्स बेसिकली गिव अस लेवरेज, यानी अगर आपके पास 1 लाख हो तो 1 लाख से 10 लाख बना देते हैं ब्रोकरेज हाउस, बट when your loss exceeds 1 lakh rupees, the trade is closed and you lost your 1 lakh, but your profit is calculated on if you have bought a position worth 10 lakh. Okay, yeah, I understand these. I got into futures and I was careful a lot, but my greed took over. ऐसा भी दिन था कि when I made $1,000 in just 10 minutes, until March when the market crashed and I literally washed my account with zero balance. इसमें I took money from a friend and my mother as well. My father, not knowing about the loss, gave me further money to invest on his behalf. I invested that in hope to recover the previous losses, and unfortunately वो भी फ्यूचर्स में सट्टा खेल कर खो गया. I currently have $600 left, all from that savings. इसमें I can easily pay debt of my partner and my mother, but my father doesn't know कि his money is lost. It was 2 lakh rupees. I recently turned 21 and work on Amazon and get a salary of $350 per month for working 3 to 4 hours for the client. I can scale this further too, inshallah, by finding a few more clients.
Also, purpose of this email is anyone who's getting into cryptocurrency, I beg you to stay away from trading futures. It will destroy you literally. Junaid bhai, what should I do? I provide the fact I owe my father 2 lakh and he doesn't know about it. जब खानदान वाले पैसा देते हैं, why aren't they ready to take a loss? एंड प्रॉफिट में खुश एंड लॉस में फिर मैं ज़िम्मेदार. उन्हें क्या कहूँ मैं? क्या ऐसी गलतियाँ करना रैंडम है सर? डज एवरी वन कमिट दीज मिस्टेक्स? हाउ डू आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम द गिल्ट एंड रिग्रेट कि अगर मैं फ्यूचर्स में ना होता तो आई वुड हैव मेड ओवर 7 to 8 lakhs राइट नाउ. And did I lose due to my greed? How do we overcome greed? I just wanted to share this with you. Maybe the amount isn't that big for some, but for me it was. Please give me your honest view. बहुत शुक्रिया. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जस्ट बिकॉज इट डिडंट वर्क फॉर यू डजंट मीन कि इट डजंट वर्क फॉर अदर पीपल और दैट इट शुड बी क्लोज. फ्यूचर्स ट्रेडिंग पूरी दुनिया करती है, तौर तरीके होते हैं. क्रिप्टो पूरी दुनिया करती है. अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स मेड अ लॉट ऑफ मनी. यार मैं जब इलॉन ने पहली बार डोज कॉइन की ट्वीट की थी ना, आई टोल्ड एवरी वन. वो $0.0000 कितने का था, मैंने सोचा कि मैं अगर $500 का भी ले लूँ, राइट. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैं बात करता हूँ. चलो पहले बात पूरी कर लेता हूँ कि ले लेता हूँ. अगर वो $1 का भी हो गया तो वो इट विल क्वाड्रुपल. और इफ़ आई एंड अप लूजिंग, आई कैन अफोर्ड लूजिंग $500. कोई नहीं माना. मुबीन को बोला, नहीं माना. अली को बोला, नहीं माना. उसामा को बोला. ये सारे क्रिप्टो बॉयज़ हैं, कह रहे बेकार है, बकवास है, मजाक है. एंड देन व्हाट डोज डिड, सबने देखा. ठीक है, माई फ्रेंड फ्रॉम US, नहीं नॉट फ्रॉम US, अच्छा US बोल दिया, मुंह से अब निकल गया. शी मेड $15,000 इन 1 day ऑन डोज कॉइन, मगर ट्रेड करते ही बाहर, सेल करते ही बाहर, पोजीशंस लॉक की बाहर. ठीक है, इसमें लंबा नहीं ठहरना होता. एनीवे, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा यहाँ पे. सो जस्ट बिकॉज इट डिडंट वर्क फॉर यू. दूसरी बात ये कि देखो, हमेशा ना उतना इन्वेस्ट करना चाहिए जितना लूज़ करने का आप में पेशेंस हो, राइट. Jews क्या करते हैं, दे नेवर बाय एनीथिंग विच इज़ 10% ऑफ देयर एंटायर फॉर्चून. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर उनके पास 1 करोड़ है ना, तो वो 10 लाख की कोई भी चीज़ नहीं खरीदते. इट शुड बी लेसर देन दैट, राइट. अब आपने लिया भी 1 लाख और वो भी किसी और का, तो वो फिर आप ऑल इन गए थे ना. तो ऑल इन तो अगर आप ब्लैक जैक में जाओ, जुए में किसी में भी जाओ, तो ऑल इन तो फिर या तो लगता है या फिर नहीं लगता. 50-50 ऑड्स होते हैं, राइट. तो आपका थोड़ा लगा भी, लेकिन फिर नहीं भी लगा. अब फ्यूचर्स ट्रेडिंग को आप गालियाँ दे रहे हैं, वो आपके लिए नहीं चला, लेकिन बहुत से लोग तो करते हैं, एंड दे डू इट वेल. अब क्या है वो, बट अगेन रही बात ग्रीड की, तो अब ग्रीड ये है कि देखो, एवरी मिस्टेक इज़ अ लेसन. आपने ये मिस्टेक, आपने बोला डज एवरी वन कमिट मिस्टेक? ऑफ कोर्स एवरी वन डज. पीपल मेक मनी, पीपल लूज मनी ऑल द टाइम. पर आपने ये गलती की, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस था, और आपको 21 साल की उम्र में ये एक्सपीरियंस हो गया, और सिर्फ 1 लाख रुपए के ऊपर. अगर यही आप 50 साल के होते और आपके 50 लाख होते, तो फिर आप गिर जाते बड़ी बुरी तरह, प्रोवाइडेड अगर आपके पास पीछे बैकअप ना होता, राइट. 21 में सीखा है, ठीक है, आप काम कर रहे हो, $350 कमा रहे हो, आवर्स बढ़ा दो अपने, पैसे कमा के फ़ौरन पहले अब्बा को तो फारिग करो, ठीक है ना. उसके बाद जब भी जाओ, हमेशा जो है ना उतनी अमाउंट लगाओ जितने का लूज़ करने का मादा हो तुम्हारे अंदर. समझ रहे हो? मैं भी जो है कहने को मैं बहुत सारे पैसे लगा सकता था डोज पे, लेकिन फिर मुझे दुख होता अगर वो नीचे आते तो मैंने सोचा $500 लगा ले, तो लग गया तो लग गया. खैर मैंने लगाया फिर भी नहीं, बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट एवरी वन. यही होता है ना, खुद करना होता है, दूसरों को नहीं देखना होता. सब ने बोला नहीं नहीं नहीं, और मुझे गट फीलिंग थी कि ये जाएगा ऊपर. इलॉन कुत्ते की तरह बार बार ट्वीट कर रहा है, ठीक है, इट्स अ जोक, बट आप करो, पोजीशन निकालो और बाहर आ जाओ, राइट. 500 के 5000 बनाए, वापस बाहर आ गए, जाना ही नहीं दोबारा, एक ही बार करना होता है. खैर, नो रिग्रेट्स. तो यही मैं आपको कहूँगा. और आप जो दूसरों को कह रहे हैं कि ना करें, देखिए सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, और सबको अपने अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, दूसरों से भी सीखना चाहिए, मगर ये कि ध्यान से इन्वेस्ट करें. और जो लोग सुन रहे हैं, पोजीशन उतनी ही लें जितना को आप लूज़ करने का आप में पेशेंस हो, ठीक है. हाँ जी, द नेक्स्ट वन इज़ अ बिट डिस्टर्बिंग. इसकी हेडिंग है, आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स माई ब्रदर्स वाइफ.
Salam Junaid bhai, hope you're doing well. First of all, I want to thank you for such content and helping other people. To best understand my situation, I want to give you a little background. So please don't mind if this email gets lengthy. It's okay. I'm a 24-year-old CS graduate who belonged to a small city in Punjab, currently working from a home in a software house and making more than 100,000 rupees a month, mashallah. I'm from a lower middle class family. We are all brothers. I'm the youngest. We live in a small rented house and now started saving 80% of my income to build a new house. As I make more than everybody else at home, this responsibility is on me. Now, coming to the point, staying at home for the past year or so, I have somehow developed feelings for my brother's wife and I feel a strong attraction towards her. This is the only time I stayed at home for the long time after my metric. I've always liked her as a person, but never thought of this liking would turn into something else. It has reached the point that sometimes I think if not her, then my wife should be exactly like her in every way. The more I look at her, the more attraction I feel. I don't know how can I just kill off my feelings. Speaking of her, she treats me like a brother, which hurt me the most, and does things for me like cooking food because I can't, and you know Pakistani mothers well. Okay, washing my clothes and taking care of my needs in general. This puts me in guilt that what she thinks of me and what am I doing here. So why it all happened? The reason I could think of is that I have never been in any relationship in my life. I've never approached any girl to date because of lack of confidence and fear of rejection. I sometimes think that to kill off my feelings, I should make some effort to get into a relationship with any other girl. For the solution, I tried to limit my interaction with her, but that didn't work. She is a little talkative and frank with me, so she always starts off the conversation. The house is small that everybody is at everyone's face all the time, so we have no other option to talk to each other. The solutions I thought either are not possible or have some consequences. So I thought number one, to actually leave and live in Lahore, but you know the COVID situation. To just directly, number two, to just directly speak to her to dress up properly, cover herself properly when I'm around, and she should talk to me when necessary. If this thing gets out by her, there is a risk it will ruin the home's environment and my brothers will hate me for the rest of my life. Number three, to ask my family to get me married to a good girl. Seems like many people in the family wants me to get engaged to my 17-year-old maternal cousin, which I don't want. ये अलग तलवार लटक रही है मेरे सर पे. You know, people out of family just have a long list of demands and look for stability, which I can't provide right now. So the question is, how can I remove this filth from my mind, and what do you think I should do? I know it's a little shameful act, but I feel guilty every day. That's why I'm reaching out to you. I've never shared anything personal with anyone in my life. Please answer this email. ओके सो बेसिकली एक साहब है, बहुत सारे भाइयों में सबसे छोटे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कमाते हैं, घर छोटा है तो घर बनवा रहे हैं, तो पिछले 1 साल से घर पे काम कर रहे हैं, तो घर में रहने से इंटरेक्शन बढ़ गया है, इनको अपनी भाभी पसंद है और उनके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं. अब चूँकि भाभी जो है इनके सारे काम करती हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह, फिर भाभी थोड़ी सी टॉकेटिव भी है तो इंटरेक्शन भी काफ़ी है, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो रहे हैं. अब उनको समझ नहीं आ रहा क्या करूं. तो एक ऑप्शन इन्होंने ख़ुद कहा कि या तो मैं लाहौर चला जाऊं, मगर कोविड सिचुएशन इस तरह की है वो भी सही नहीं है. दूसरा ये कि मैं उनको ये बोलूं कि ड्रेस, अच्छा आप लाहौर अगर नहीं जा सकते फॉर जो आपने दूसरा लिखा ना, टू स्पीक टू हर डायरेक्टली सो दैट शी कुड कवर हर अप प्रॉपरली वगैरह वगैरह, ये आपका काम नहीं है उनको कहना कि आप उनको बोले, ये उनके हस्बैंड का काम है, आपके भाई का काम है. देखें, हमने हमेशा फिल्मों में ना, इंडियन फिल्में मैंने तो बहुत देखी भाई, क्योंकि वो स्कूल से अबे कुछ करने को ही नहीं था, स्कूल से आया, ट्यूशन पढ़ा, मौलवी साहब अब क्या करें, जी टी वी चाट लिया हमने, राइट. और उसमें आती थी फिल्में, मिथुन विथुन सब देखा है भाई. हर फिल्म में क्या, भाभी माँ सम्मान, भाभी माँ सम्मान यानी माँ जैसी होती है, तो जहन में ये बिठा लिया. तो हम भी यही सोचते थे, मेरा बड़ा भाई है, नाउ ही लिव्स अब्रॉड, तो हम ये सोचते थे कि हमारा छोटा घर है, तो जो भी मेरी भाभी बन के आएगी तो आई विल ट्रीट हर लाइक माई मदर, राइट. पहले से ही बना लिया था कि क्योंकि वो एज ऐसी होती है कि ज़ाहिर है आप यू थिंक डिफरेंटली टूवर्ड्स योर सिबलिंग्स एंड योर मदर, बट लाइक आउटसाइडर हो और आपकी इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, तो जाहिर है वो जहन में चीज़ें अजीब अजीब आती हैं. दैट्स परफेक्टली फाइन.
ठीक है। बट जहन में एक तो आप ये बिठा लें कि यार वो आपके भाई की बीवी है, राइट, आपके भाई की इज्जत है, तो आप पे लाजिम है उसकी इज्जत करना। और आपने जो है ना अपनी नज़रों में हया डालनी है, उसको कवर कर। देखें इस्लाम में भी क्या है, औरत को पर्दा बाद में कहा है, पहले मर्द को बोला है कि अपनी नज़रों में हया लेकर आओ। तो आप अपनी नज़रों में हया लेकर आए, जैसे सबूर अली ने कहा ना आमिर लियाकत साहब को, अपनी नज़रों में हया लेकर आए, तो आप उनको बिल्कुल माँ की तरह ट्रीट करें। ठीक है, वो उम्र में बहुत छोटी होंगी आपकी माँ से, आपसे ज़्यादा बड़ी शायद ना हो, 5 साल का फ़र्क होगा मैक्सिमम, दोस्ती वाली एक वो होगी। मगर आप अपने जहन में रखें कि आफ्टर योर मदर शी इज़ योर मदर। ये इस तरह सोचें आप। आपकी कोई बहन नहीं है, आपने लिखा ना आप सिर्फ भाई हैं, तो आपकी बहन नहीं है तो फिर टेक्निकली ये आपकी बहन हुई, राइट। ये अल्लाह ताला ने आपको बहन दी है इस फॉर्म में। तो अगर आपके घर में आपकी सगी सगी बहन होती तो क्या आप बहन के ऊपर ऐसी नज़र रखते? नहीं रखते ना। तो ये गलत है। तो आप अपनी नज़रों में हया लेकर आए, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें। शैतान ने आप पे चढ़ा हुआ है थोड़ा सा, तो वो देख लें। अब जस्ट बिकॉज आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो आप चाह रहे हो कि मेरी कहीं और शादी हो जाए, यार ये रीज़न नहीं होता शादी करने का कि मेरी नज़र वहाँ से अगर ना हटे फिर भी है। क्या गारंटी है कि नज़र हट जाएगी भाभी से? जो अगर आप इतने सालों से या 1 साल से कम से कम इस तरह फील कर रहे हो, हुज़ टू से बेगम में वो वाली बात ही ना हो, फिर भी आपको भाभी नज़र आए, फिर क्या करोगे? शहर छोड़ोगे, मुल्क छोड़ोगे, फिर भी ना समझ आए, फिर तो भाई अपने आप को फिक्स कर लो ना। सिचुएशन कोविड तो आप फिक्स नहीं कर सकते कि आपने वैक्सीन ईजाद कर ली सब सही हो गया आप लाहौर चले गए, नहीं कर सकते। तो इस वक्त आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो आप जो है ना, आप ये कर सकते हो कि इंटरेक्शन लिमिटेड रख लें आप अपनी तरफ से, हम हाँ करके जवाब दे दें, मतलब ज़्यादा बातों में ना एंगेज हो कि आप भी लेके बैठ ही गए उनको किस्से कहानियाँ सुना रहे। थोड़ा सा सटल तरीके से उनको फील कराए कि मैं ना थोड़ा सा बिजी हूँ, बोलो आई लव टू टॉक टू यू बट काम फंसा हुआ है, भाभी आपसे 2 मिनट में बात करता हूँ, और फिर आप अगले दिन बात करें। 2-3 बार इस तरह करेंगे ना, अगर वो समझदार औरत है तो खुद समझ जाएंगी कि यार मे बी ही इज़ ट्राइंग टू अवॉइड मी फॉर वट एवर रीज़न। और वो तो आपको इस तरह सोचती भी नहीं होगी, वो सोचती मेरा भाई है, वो तो भाई की तरह आपसे बात कर रही होगी। उनकी तो जहन में भी ये बात नहीं है कि उल्टा वो परेशान हो जाएंगे कि मेरा भाई मुझसे नाराज़ क्यों, क्या मैंने इसके खाने में कोई कमी पेशी कर दी, क्या मैंने इसके कपड़े नहीं धोए, मतलब जिस तरह आपने लिखा है मैं हर तो काम कर रही हूँ उसका, तो फिर वो शायद और शी वुड फील मोर कि मैं और बढ़ चढ़ के काम करूँ, फिर आप ऑपोजिट ऑकवर्ड हो जाओगे। तो वो सिचुएशन ना बड़ी अजीब हो जाएगी। आप अपनी नज़रों में हया लेकर आएँ। आप बोलेंगे मेरी माँ है, ये मेरी छोटी वाली अम्मी है, ठीक है, ये मेरी बहन है जो अल्लाह मियाँ ने दी है, जो हमें कभी नहीं मिली, अब ये मेरी बहन है। बहनों पे ऐसी नज़रें नहीं होती, ठीक है। बाकी दुआ शुआ करें, नमाज शमाज पढ़ें, सब सेट हो जाएगा। और जब नहीं हो रहा तो फिर लाहौर मूव हो जाए, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड। लेकिन लाहौर मूव होके भी क्या गारंटी है कि आपके ख्यालों में नहीं आएगा ये बार बार ये चीज़ें। तो ना इसको ज़रा करें अपने नज़रों में, अपने आप को हिलाएं कि नहीं भाई ये गलत चीज़ है। क्योंकि इंसान का दिमाग पे कंट्रोल ही नहीं होता, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इंसान के जहन में आती है, बहुत फजूल चीज़ें आती हैं जहन में, राइट। तो आपने अपने आप को झंझोड़ना होता है कि नहीं नहीं नहीं, वाई एम आई थिंकिंग लाइक दिस, अपने आप को डाइवर्ट करें इधर उधर, ठीक है। ख्याल रखें अपना, थैंक यू। हाँ भाई लास्ट वन, फिर इसके बाद जानिए हलीम बिरयानी ढूंढने। क्या टाइम हो रहा है अभी? 9 बजे। लेट तो नहीं हो रहे आप? फ्रस्ट्रेटेड ऑफ बीइंग अनसक्सेसफुल विद विमेन डिस्पाइट हैविंग अ फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड फाइन लुक्स, ये सब्जेक्ट है ईमेल का। सलाम जुनेद भाई, माय नेम इज़ ABC, प्लीज़ डोंट मेंशन, आई एम फ्रॉम अ सिटी इन पंजाब, करंटली वर्किंग एज अ ओके इन अ वेल नोन होटल। अच्छा, गेस्ट सर्विसेज में होंगे आप। आई एम 24 बट स्टिल हैवेंट फाउंड अ सिंगल गर्ल हु रियली लव्स मी। 3 years back आई वॉज इन लाहौर at my cousin's wedding and her best friend asked me to dance with her. Don't know the exact reason but we were in the same school और वो मुझे बचपन से जानती थी। उसके बाद मैंने FB पे उसको मैसेज रिक्वेस्ट देखी जिसमें शी आस्क्ड फॉर अ डांस वीडियो, तो मैंने उसे सेंड कर दी। उसके बाद हमारी बातचीत होने लगी और बातों बातों में आई एम इन लव में आई लव यू ब्ला ब्ला बोलने लग गया। सो शी सेड टू से नाइस जोक बट डिडंट से समथिंग नेगेटिव विच मीन्स शी वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन मी। फिर मैंने फ्लर्ट करते हुए कुछ ज़्यादा बोल दिया तो शी गॉट ऑफेंडेड के लाइक तुम क्या चाहते हो, रिलेशनशिप के फ्रेंडशिप? आई सेड रिलेशनशिप। शी सेड ओके बट मेरी फैमिली में कास्ट से बाहर नहीं करते ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन फिर भी बात करती गई और कभी छोड़ती और कभी आ जाती, ऐसे ही होता रहा
और आखिरकार लास्ट ईयर में हमारा ब्रेकअप हो गया एंड सिंस देन आई एम सिंगल। है, यही ईमेल थी। तो अच्छा, सवाल क्या था इसमें? सो लाइक फ्रस्ट्रेटेड ऑफ बीइंग अनसक्सेसफुल विद वुमेन डिस्पाइट हैविंग अ फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड फाइन लुक्स। भाई ये फेयर कॉम्प्लेक्शन ये ना ये फिल्मों में होता है कि वो फेयर एंड लवली 7 दिन लगाई और बॉस को नज़र आई, अरे रेशमा इतनी खूबसूरत थी। ये ज़िंदगी में नहीं होता। इंसान की ना और भी कैरेक्टरिस्टिक बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो है ना मर्द लुक से नहीं आजमाए जाते। ख़वातीन मर्दों में लुक्स देखती ही नहीं है। इनफैक्ट मैं परसों एक टिकटॉक देख रहा था, women don't like attractive men, like men who women don't like good looking men. They might like to observe, मगर उनको पता है कि इसकी पर्सनालिटी बिल्कुल फारिग होगी, क्योंकि गुड लुकिंग लोग जो है ना अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं करते ज़्यादातर, बोथ मेन एंड वुमेन। वाई? बिकॉज दे सो गुड लुकिंग, उनके हर काम ऐसे ही हो रहे होते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो लुक्स जो है ना आपको फेवर करते हैं टू अ सर्टेन डिग्री, मगर पता है आपकी पर्सनालिटी क्या है वो ज़्यादा मैटर करती है। आप अपने आप को फिट रखते हैं, या हाउ यू ड्रेस योरसेल्फ, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। आपको बात करने आती भी है कि नहीं आती है, राइट? तो या अब वो उन्होंने आपसे डांस की वीडियो मांगी, आपने तो उनका हाथ ही मांग लिया। उन्होंने बस आपसे डांस कर लिया क्योंकि आप स्कूल में पढ़ते थे, तो आपने समझा कि अच्छा ठीक है, तो आपने लव यू बोला। उन्होंने अगर जवाब नहीं दिया ना, कि कभी कभी ये भी होता है ख़वातीन इंटरेस्ट अगर आप में नहीं शो कर रही ना, तो वो ब्लंटली नो नहीं कह पाती, राइट? शर्मा शर्मी में या जो भी, क्योंकि देखो ये वाकई बहुत बड़ा रिस्क है। मर्द पता नहीं किस किस तरह रिएक्ट कर जाए, कुछ तेज़ाब ही आके फेंक दे। अगर किसी खातून ने बोला कि नहीं भाई मुझे तुम नहीं पसंद हो, वो आके तेज़ाब फेंक दे, क्या कर लोगे? क्या नहीं होता हमारे मुल्क में से वाक़यात होते ना भाई, उठा के ले गए। तो ना ख़वातीन सेमी भी होती हैं ज़्यादातर। तो वो शर्मा शर्मी में, या फिर ये कि यार फेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो अगर जवाब ना देना तो अज्यूम नहीं करना होता कि अच्छा उसने मना नहीं किया है, हाँ नहीं किया लेकिन मना नहीं किया, तो यानी ये अभी भी हंसी तो फंसी वाला, ये नहीं करना चाहिए। जब तक क्लैरिटी ना हो आगे से कि हाँ आई लव यू एज वेल और वगैरह वगैरह, अज्यूम नहीं करना होता कि यार इसने ना नहीं कहा तो यानी अभी भी मैं पीछे जाऊँ। ये गोविंदा की फिल्म नहीं है कि ममता कुलकर्णी के पीछे उसको इतना तंग करो कि वो प्यार में आ जाए। ये नहीं करना होता, ये फिल्मों में होता है, ठीक है ना? तो ये अज्यूम करना गलत बात है। मैं लॉन्डो से वैसे भी बात कर रहा हूँ, तो आपने ऐसा नहीं करना होता जब तक लड़की क्लैरिटी ना दे। तो अब उन्होंने बोला कास्ट में से बाहर नहीं करते, फिर भी बातें करती थी। अब देखें, ये तो मैं इसकी इसके बारे में पहले भी बोल चुका हूँ भाई। ख़वातीन का पोर्न होता है कि कोई हमारी बातें सुने, ये उनका पोर्न होता है। हमारा होता है hubchowki.com, समझ गए ना? उनका होता है कोई हमसे बातें करे, ठीक है? उनको आप मिल गए। इसी तरह बहुत सारी होती हैं, बस क्या उनको कोई सुनने वाला, क्योंकि वो भरी हुई होती हैं पूरे दिन की। ऑफिस में ये हो गया, कॉलेज में ये हुआ, टीचर ने ये बोल दिया, घर में ये हुआ, मैं बहुत ये हुआ हूँ। तो बहुत सारी खबर, मैं सबके लिए जनरलाइज नहीं कर रहा, राइट? तो उसको हम समझते हैं कि यार शायद मुझ में इंटरेस्ट ले रही है, तभी तो मुझसे बात करी। नहीं, उनको दे जस्ट वांट टू वेंट समटाइम्स। अब ये जो आप कह रहे हैं ना कभी आई कभी गई, कभी आई कभी गई, क्योंकि वो इसलिए होता है कि कभी आपकी बारी कभी किसी और की बारी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो हैबिचुअल होंगी, मैं आई एम नॉट अज्यूमिंग, मैं नहीं जानता उनको कि उन्होंने 4 रखे हुए होंगे, मगर ख़वातीन के पास ना वैसे ही रश लगा हुआ होता है, राइट? तो वो अटेंशन देने वाले बहुत सारे बॉयज़ इनबॉक्स में भी आ रहे हैं, डीएम में भी आ रहे हैं, उनको कमी थोड़ी है। ख़वातीन को तो बहुत मिल जाता है। तो अब उनका आना जाना क्या था, क्या वजह थी, वल्लाहु आलम, मैं तो नहीं जानता। मगर ये कि उन्होंने जब आपको स्ट्रेट अप कह दिया कि भाई कास्ट में हमसे बाहर करते नहीं, या तो अगर उन्होंने, होता है ना लोग कि चलो शादी तो किसी और से करनी है, अभी तो हम मुंह मार लें, तो वो कास्ट वास्ट नहीं देखते। जब उन्होंने स्ट्रेट अप कह दिया ना कि कास्ट से बाहर है नहीं, दैट मीन्स शी वॉजंट इंटरेस्टेड इन अ फ्लिंग, शी वॉज इंटरेस्टेड कि भाई रिलेशनशिप करनी तो शादी तक जानी है, वरना मेरा टाइम जाना करो। शी वॉज वेरी क्लियर, आई एडमायर हर, शी वॉज वेरी क्लियर। उसने आपको रूड ना हो, लव यू भी नहीं किया। उन्होंने आपको स्ट्रेट अप बोल दिया जी कास्ट से बाहर सीन ही नहीं है, मगर बातें आपसे की क्यों किरदार है, उनको तो चाहिए कोई सुनने वाला। ऐसा ही है भाई, बरा 5 रुपये का पैकेज इन्हीं पे चल रहा है पूरी पूरी रात। आज ये हो गया, हंडिया सही नहीं बनी तो अम्मी ने ये बोला, ये हो गया, वो हो गया, पर तो भाई हमने ही बहुत सुनी है, अज्यूमिंग कि शायद यार इंटरेस्ट ले रही तभी तो बात कर रही है, मगर वो खैर सबका अपना अपना हिसाब किताब। तो आप ना अपने, आप बेटा आप 24 साल के हो, नौकरी करते हो,
तो ना जहन से ये सोच निकाल लो कि भाई मैं बड़ा खूबसूरत हूँ तो लड़कियाँ आके गिरेंगी, ऐसा नहीं होता भाई। खूबसूरत खूबसूरती का क्या करना है, फाटा में जाओ हर तीसरा बंदा फवाद खान है भाई। वजीरिस्तान जाओ हर बंदा, अबे टॉम क्रूज यार। मैंने यार कभी आपको मैन क्रश कभी कभी मैन क्रश भी हो जाता अबे यार, क्या हैंडसम आदमी है, मतलब यार दुनिया रुक जाती है यार, कितना है। एक बार मेरे साथ हुआ था कराची यूनिवर्सिटी के बाहर एक बंदा, यार क्या टॉम क्रूज क्या हैंडसम होगा। पख्तून भाई थे हमारे एक, अबे भाई मैंने बोला यार इसको अंदाज़ा नहीं है, ये जो अरशद चाय वाला जो कितना फेमस कर दिया था लोगों ने, अबे हर तीसरा बंदा वैसा है, हर तीसरा बंदा वैसा है। फाटा जाए तो सही आप वजीरिस्तान जाके तो देखे, केपी में माशाल्लाह भाई, ठीक है ना। तो खाली लुक्स नहीं होते भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती हैं, आपकी प्रेजेंस पर्सोना, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कि भाई मैं गोरा हूँ तो कोई आ नहीं रही, अबे ये क्या बात हुई, तो इस तरह तो अमेरिका में सबके पास अब कौन नहीं यार, इन सोचों से बाहर है। चले भाई बहुत हो गई कैसेट, अब मैंने जाके ज़रा फूड व्लॉग भी करना है, तो फिर आपसे दोबारा बात होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस फार। अगर आप एंड तक पहुंच गए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा पेट्रियन पे। इफ यू वांट टू सपोर्ट यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganjiswag। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।